So today we have to continue the discussion on epithelia and its subtypes, while to continue with compound epithelia. Now, in general, to characterize compound epithelia before looking forward with its types, characteristically, compound epithelia is first of all being recognized by presence of more than one layer of cells on basement membrane. Now that's the first characteristic, followed by the epithelia are being named on the basis of cell shape on top layers. Whatever the layers, जो टॉप लेयर सेल्स हैं उनका शेप कैसा है, अकॉर्डिंगली एपिथेलिया आर बीइंग नेम्ड, उनको नाम उस तरह से दिया जाता है. एंड देयर आफ्टर फॉरमोस्ट they are responsible for protection. Mainly this epithelia has come into existence to offer a protection. So they are responsible for protection by tolerating general and frequent, अक्सर और आमतौर पे जो जनरल एंड फ्रीक्वेंट wear and tear in the given environment. Point to be noted, एक डे टू डे लाइफ में बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली अलग अलग तरह के एनवायरमेंट स्ट्रेस का सामना करता है, एनकाउंटर करता है, और छोटे मोटे किसी भी तरह के ऐसे वियर एंड टियर, छोटी मोटी टूट फूट जो है वुंड, इसको वो बर्दाश्त करता है, सामना करता है, और इस तरह से वो प्रोटेक्शन देने के लिए मेनली इस तरह के एपिथेलिया एग्जिस्टेंस में आए हैं. एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑल ओवर कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलिया. And finally, they are being specially named due to their strata of cells, layer and layer after those cells. So those make it also called as the more reluctant term we use frequently, that is stratified epithelium. So as per the sequel of discussion, now we will go through those illustrations. What are those different patterns of stratified epithelia? The first category is stratified squamous. Stratified squamous. Now it has itself being originated and developed in two forms. One is what we recognize as keratinized, and the other is non-keratinized. If we simply now consider this epithelia, so this is the basement membrane.
innermost basal layer is of columnar shape, as you could view. Thereafter, there is a series of cuboidal shaped cells thereafter, layer after and layer. But as the layers move towards upward, the cells become more and more flatter. Similarly, over here, such flat cells. Now, where the difference lie thereafter, क्योंकि diagram wise तो दोनों में structurally same arrangement दिखाया गया है, but it is the presence of keratin or either absent. The keratinized epithelium, the topmost layers, they have been named on the basis of what the shape of the cells at the topmost layer, that is squamous shaped. Hence, it is stratified squamous epithelia. But itself having two different type of again structural arrangement. One which possesses those keratin. These red dot-like structures are simply the keratin protein granules, जो साइटोप्लाज्म को रिप्लेस करके वहां पूरी तरह भर जाते हैं, एंड देयर प्रेजेंस मेक द टॉप लेयर सेल्स टू बी डेड, and being dead they offer that protection what we are talking about. Sooner or later frequently वो उस एक्सटर्नल के जो भी सारे जर्क्स और मैकेनिकल शॉक्स को बियर करके थोड़ा बहुत वो झड़ भी जाते हैं. There are the underlying cells to replace them. So every time that's the main protective role, and they tolerate those wear and tear in general day to day life. ये उनका major role है. By presence of keratin, it acquires waterproof and germ proof property, truly to offer that physical barrier as a innate immunity, as an so the exclusive example in the body where the keratinized epithelium is present histologically to generate the body part, and that example is none other than skin epidermis. Skin itself is made up of two histological layer, epidermis and dermis. Epidermis is technically made up of completely stratified squamous keratinized epithelia. Then what about the non-keratinized? Just opposite. They give internal, है ना, बॉडी के इंटरनल फिजिकल बैरियर. By participating as mucous membrane, as while you will go through your चैप्टर इम्यूनिटी ह्यूमन हेल्थ डिजीज, आप देखेंगे कि फिजिकल बैरियर करके एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एज एन इननेट, एज अ फर्स्ट साइन ऑफ व्हाट वी कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टू ऑफर. तो बाय बर्थ सब में एक इंटैक्ट हेल्दी लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर अंदर बाहर, चाहे वो इंटरनल डक्ट्स, जितने भी हमारे इंटरनल डक्ट्स हैं वहां की लाइनिंग की तरह मौजूद हो, या बॉडी सर्फेस इज होल सोल कवर्ड बाय द फिनिशिंग कवरिंग लेयर व्हाट वी बेटर नो कॉल्ड स्किन, इंटेग्यूमेंट. So both integument externally and internally mucous membrane offer the physical barrier what we are actually discussing, and try to justify one of the prime characteristic of compound epithelia.
क्योंकि whoever the germ as a disease causing agent pathogen, it has to encounter the first barrier, physical barrier, to actually enter into the body, and the action, that action is called medical भाषा में disease पढ़ते हुए, pathological science पढ़ते हुए हम उस घटना को कहते हैं infection, successful entry of any given disease causing factor inside the body. तो थैंक्स टू दीज हिस्टोलॉजिकल लेयर एज अ बून, किसका आशीर्वाद है? एपिथेलियल टिश्यू का, जो शरीर में जनरेट हुआ है और अपना प्लेसमेंट लेता है, अपनी पोजीशंस लेता है और ऑफर करता है, जो कि आज के क्लास के इस पहले डिस्कशन का प्राइम पंच लाइन है, रिस्पॉन्सिबल टू ऑफर प्रोटेक्शन. व्हाट दैट प्रोटेक्शन इंडीड मीन्स. तो बॉडी के चार ही तो सिस्टम्स हैं. लास्ट डे व्हेन आई वाज ऑन द चैप्टर ऑन द टॉपिक ऑफ स्टमक, और चाहे इट वाज द इंटेस्टाइन, वहां भी मैंने म्यूकस मेम्ब्रेन वर्ड इस्तेमाल किया था, लेकिन उन जगह पे जाके वो फिर सिंपल एपिथेलिया हो जाता है. कहा क्या हो जाता है? सिंपल एपिथेलिया. क्योंकि वहां के इंटरनल सर्फेसिस पे जो मूवमेंट्स होते हैं वो उतने ज्यादा हार्श नहीं होते हैं, क्योंकि वहां खाने का घोल लिटिल बिट सॉफ्टर लिक्विड नेचर पास करता है और वो उतना फ्रिक्शन नहीं जनरेट करता, और अगर करता भी है तो वो ल्यूब्रिकेट हो जाता है, फिसलन हो जाती है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या मौजूद है वहां. और वो म्यूकस मेम्ब्रेन यू कैन होल्ड द योर चिक ओवर हेयर, यहाँ एक होल्ड करे और बकल कैविटी होल्ड करके इस फिंगर टिप को आप अंदर की तरफ रखें, यू विल गेट अ डिफरेंट टेक्सचर ऑफ फीलिंग. यस और नो. यहाँ एक हार्डनेस, टफनेस महसूस होगा और अंदर म्यूसिलिजिनस. बोथ आर स्ट्रेटिफाइड. नाउ सी द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्कशन. ये तो थ्योरी हो गया. जस्ट टू जस्टिफाई इट, आप अपने ही बकल कैविटी में अंदर हाथ रखें और इधर रखें. बोथ आर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, बट वन इज नॉन कैरेटिनाइज्ड, अनदर इज इट इज डेड सरफेस, वेयर अंदर जो है वो लिविंग सरफेस है. आई एम कमिंग अप टू दैट पार्ट, है ना. वहां कैरेटिन बस मौजूद नहीं है, वहां भी उस सरफेस को कंपैरेटिवली जो है लेसर देन द एक्सटर्नल सरफेस. ये पूरा सरफेस लगातार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हीट, ह्यूमिडिटी, डिफरेंट अदर मैकेनिकल स्ट्रेस की तरह झेलेगा. वेयर एज द स्ट्रेस विच दिस एरिया यहां तक टिल इसोफेगस जो बियर करेगा वो है फ्रिक्शनल फोर्स. कैसा फोर्स? provided if the food bolus has not been properly liquefied by our biting and chewing action. तो while we bite, chew and masticate, हम खाने को चबाते हैं, ingress करते हैं, ingestion activity से अंदर लेते हैं, उस दौरान जो हल्का फुल्का फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको झेलना, विच इज कंपैरेटिवली लेसर देन द आउटर सरफेस, लेकिन है तो फ्रिक्शन. तो उस दौरान थोड़ा बहुत एपिथेलियम झड़ भी जाए तो नथिंग इज वरीड, फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो उसका नेचर है टू बियर ऑल दीज. तो जब हम आप किसी तरह के ड्राई फ्रूट, किसी ड्राई फूड बोलस को अगर आप अंदर लेते हैं तो डेफिनेटली यू फील अ फ्रिक्शन वाइल सॉलोइंग. और उसको सबसाइड कौन करता है, कौन उसको मिनिमाइज करता है? द म्यूसिलिजिनस नेचर ऑफ स्लाइवा. मुंह गीला हो तो निगलने में आसानी होगी, नहीं तो आप एक ड्राई बिस्किट भी आप नहीं निगल सकते. यस और नो. और निगल भी गए फोर्सफुली तो यू विल हैव अ फ्रिक्शनल फीलिंग. यस और नो. सबको आ रही है मेरी बात समझ में? तो दैट्स फिजियोलॉजी, दैट फिजियोलॉजी ऑफ सॉलोइंग दैट फूड मैकेनिकली, एक जो हम अंदर लेने का वो हमारा प्रोसेस है, डिग्लूटिशन एक्टिविटी, इट इज बीइंग एक्चुअली सपोर्टेड बाय व्हाट अरेंजमेंट? एंड हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट. What is that histological arrangement? Stratified epithelium, non-keratinized. So all that explanation end up with example कि ये एपिथेलियम का तो एक्सक्लूसिव एग्जांपल है स्किन एपिडर्मिस, लेकिन मैं बाकी जो चार एग्जांपल अब लिखवाने जा रहा हूं. वन इज द कंप्लीट बकल कैविटी, पूरा बकल कैविटी, फॉलोड बाय फेरिंग्स, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट में द कॉपुलेटरी ऑर्गन वेजाइना, ऐसे आंखों में कॉर्निया और पूरे इस एरिया को जो विजिबल पार्ट है थ्रू आउट, है ना, दैट लेयर, एक्सटर्नल लेयर कॉल्ड कंजक्टिवा. देखिए, इफ यू गो थ्रू एनी बुक यू विल गेट अ लॉट ऑफ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स, लेकिन मैं राइट डे वन से कह रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और खुद को सेल्फ एसेस और ट्रिगर अप रखना टॉपिक को लेके, हर कैटेगरी में मिनिमम दो तीन और कुछ तो एक्सक्लूसिव है जिनमें एक एग्जांपल याद रखना है.
सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो डोंट गेट पैनिक कि इतने सारे एग्जांपल्स कैसे याद रखेंगे। ये तो थ्रू आउट गोइंग प्रोसेस है, थ्रू आउट द सेशन। आप पूरी फिजियोलॉजी और अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते हुए मेनी टाइम्स यू विल अक्रॉस सच सिचुएशन कि मैं किसी ना किसी एपिथीलिया का नाम लेता रहूंगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपके नॉलेज में हर दिन एक एग्जाम्पल जुड़ता जाएगा अंडर डिफरेंट एपिथीलिया। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू, उस समय इन बातों को जस्टिफाई करने के लिए कुछ खास एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स लेके उस कैटेगरी को रिकॉग्नाइज करने का ये तरीका है। तो आज शुरू हुआ है कंपाउंड एपिथेलिया, बेटर नेम्ड एज स्ट्रेटिफाइड, विथ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स ऑन अ सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन। द फर्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स स्क्वामस, keratinized. Now these are the exclusive arrangement. Let us move to the next category, and that is none other than stratified cuboidal. Stratified stratified cuboidal. Now again, the first layer is the columnar cells, followed by the top layer cells being cuboidal. So such epithelium is found in, ये एक अडल्ट बॉडी में बहुत रेयरली ये सब आप पाए जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और जो भी है दो कैटेगरी, इसके कोई सब टाइप्स नहीं है, ठीक है। लेकिन एक एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल आपको याद रखना है, डक्ट्स ऑफ। हालांकि जितने भी ग्लैंड्स हैं, सभी जो डक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके डक्ट मौजूद हैं टू रिलीज देयर सिक्रीशन अप टू द टारगेट, उन सभी के डक्ट में ये एपिथेलियम होता है। लेकिन मैं एनसीईआरटी के एक्सक्लूसिव एग्जांपल को लिख रहा हूं, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है। दिस सजेस्ट ऐसे वो सारे ग्लैंड्स जिनमें डक्ट मौजूद हैं, उन सब के डक्ट की लाइनिंग इसी एपिथेलियम से। क्योंकि आज जब मैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे पहुंचूंगा और वहां मेरा पहला ही स्टेटमेंट होगा, ऑल थ्रू आउट द बॉडी ग्लैंड्स, वेदर देयर सिक्रीशन इज गोइंग टू बी आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, व्हाटएवर, ऑल ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी आर हिस्टोलॉजिकली डेवलप्ड फ्रॉम एपिथेलियम टिश्यू। व्हिच एपिथेलियम टिश्यू? बेसिकली सिंपल क्यूबॉइडल। कौन से? बट जगह के हिसाब से मॉडिफिकेशंस और अलग अलग तरह के, तो वो मोर देन यानी स्ट्रेटिफाइड, लेकिन सेल्स क्यूबॉइडल होने चाहिए। सेल्स कैसे होने चाहिए? जो सिक्रीशन करते हैं उस ग्लैंड के, वो सेल्स का शेप हमेशा कैसा होता है? क्यूबॉइडल। हालांकि लास्ट क्लास आपने देखा कि डायग्राम में जब मैंने क्या बनाया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड तो बने थे सिंपल कॉलमनार, सिंपल, लेकिन था तो एपिथेलियम टिश्यू। अच्छा, वो मॉडिफाई होके इन्वेजिनेट करके अंदर शेप जब लेते हैं तो उन ट्यूब जैसे उस लाइनिंग में वहां के सेल्स फिर कैसे हो जाते हैं? क्यूबॉइडल, है ना। तो दैट्स द डेविएशन। तो ये सारी बारीकी, ऐसे प्रिसाइज बातें आपको आने वाले दिनों में ही फिजियोलॉजी में क्लियर कर दिया जाएगा। कि खुद गैस्ट्रिक ग्लैंड का डायग्राम देखेंगे, उसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, कौन सा सेल एचसीएल बनाता है, कौन सा सेल पेप्सिन नो जेन बनाएगा, एंड सो ऑन, और बाकी सारे फैक्टर्स ऑल टुगेदर द मिक्सचर इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? which play physiologically to play the role of bringing some digestive activity। लेकिन उस चीज को एक्सपीरियंस करने से पहले वहां का अरेंजमेंट, अभी अभी हमने कुछ समय पहले रिस्पेक्टिव टॉपिक जब हमने देखा हिस्टोलॉजी, वहां देखा पढ़ा। फिलहाल ये था स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का नेचर, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, द टॉप लेयर सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी बिगिंस, दैट्स योर stratified columnar। इसको शुरू करते से ही मैं एक डेंजर साइन इसलिए बना रहा हूं, द रीजन इज, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट epithelium tissue layer, and you could see now this time the first layer of cells, series of cells are cuboidal, not columnar। पहले क्या है? cuboidal। और फिर जो टॉप लेयर सेल्स है, दे रादर बिकम कॉलमनार।
right? Now, why I am giving so stress on the discussion of what we call stratified columnar, thereby making a sign of danger. To make you recall, मतलब इसको सब in stratified category में एक ये बहुत significant है, most question oriented point, and another is this one. Why so? Just to support it, इसका example अब आप देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ. Example, one of the exclusive example. Endometrium layer of uterus. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द डक्ट यूट्रस pear shaped, inverted, pear shaped, pyramidal shaped, singlex type of organ, that is uterus. Uterus का 3 layers होते हैं. The uterine wall has got 3 successive layers from outer to inner: perimetrium, myometrium and endometrium. जो endometrium layer है वो stratified columnar epithelium का बना होता है. ठीक है, and if it is so, let me justify. If we peep into the histological presentation of the uterine wall, अंदर ही अंदर uterine wall है ये. If we go through a longitudinal cut, now characteristically the uterine wall itself being made up of 3 layers: perimetrium, myometrium, इसको मैं पूरा लिख रहा हूं, endometrium, perimetrium, myometrium, endometrium. Now what we are concerned with is endometrium, जिसको यहां मैंने रेड कलरेशन से फिलअप कर दिया है. केस 1, केस 2, 2 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे करके. नाउ ड्रामेटिक क्वेश्चन. This is the endometrium layer which under non-pregnancy, which under, if a female X is in state of non-pregnancy, then endometrium histologically lined up with stratified columnar epithelium participate in intermittent changes of a gap with 28 to 30 days, and that what we call menses. यही एंडोमेट्रियम लेयर एक peculiar blood flow, bleeding show करता है for an recurrent period of time of 3 to 5 days. So the question is respective उस period में uterus पूरे female reproductive duct में कौन सा structure का histological layer actually shed off हो जाता है ना, wear down, झड़ जाना, गिर जाना, shed off हो जाता है. Now that's a complete physiological. The reason behind is an hormonal reflex. That's a different story. लेकिन यहाँ histologically कौन सा layer entertain हो रहा है? It is none other than the endometrium. और खुद endometrium किसका बना है? Stratified columnar epithelium. ठीक है, ये तो केस 1 नॉन प्रेगनेंसी में. नाउ सपोज दैट फीमेल एक्स अंडर कंडीशन एक्स डैश, केस 2, हैपन टू एंटर इनटू प्रेगनेंसी. Now pregnancy is being assured by what phenomena, that is attaining the establishment of pregnancy. Now that is the layer which assure the establishment of pregnancy by a phenomena called implantation. यही वो लेयर है जो फिर रिस्पेक्टिव सक्सेसिव डेज ऑफ ड्यू डेट ऑफ मेंसेस ना शो करके इट विल रिटेन एंड कंटिन्यू. क्यों? क्योंकि अब वही एंडोमेट्रियम लेयर क्या कर चुका है? इम्प्लांट हो चुका है. क्या हो चुका है? यानी एम्ब्रियो को परस्यू कर चुका है बाय अ फिजिकल अटैचमेंट. इम्प्लांटेशन का एंड प्रोडक्ट है प्लेसेंटा फॉर्मेशन. क्या है इम्प्लांटेशन? मतलब एम्ब्रियो इंग्रेस हो चुका है, एम्बेड हो चुका है, और एम्बेड होने का ही तरीका है कि उनके बीच जो फिजिकल अटैचमेंट अगले कुछ समय के लिए क्लोज इंटीमेट हिस्टोलॉजिकल कनेक्शन डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर के मैटरनल टिश्यू में बना है. दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्लेसेंटा. उसको क्या कहते हैं? सबको आ रहा है समझ में?
बिल्कुल क्लियर। तो आपको अभी अभी मैं फिजियो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उस कहानी बना के अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम लेयर जो कि इसका एग्जाम्पल है उसकी सिग्निफिकेंस को समझा रहा हूं कि उसी लेडी एक्स एक्स और एक्स डैश केस 1 केस 2 वही एंडोमेट्रियम लेयर कैसा अपना बिहेवियर शो करता है और कुछ समय बाद कैसा, एंड दैट व्हाट मेक्स इट अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, जस्ट कंप्लीटेड, देन विल मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। यानी इसके बाद अब हम देखेंगे द टॉपिक दैट इज स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया। नेक्स्ट 4 कैटेगरी अब डिस्कस होगा, ठीक है। और मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले विद इन 5 मिनट्स एक रिवीजन करवाऊंगा आपको। डे 1 से एपिथेलियम टिल डेट हमने डिस्कस किया है आउट ऑफ 18, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हम 13 टाइप ऑफ, लास्ट क्लास मैंने आपके साथ 9 एपिथेलिया स्यूडोस्ट्रेटिफाइड तक डिस्कस कर गया था, राइट। सिंपल, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, 8 तरह के सिंपल एपिथेलिया पढ़े थे और लास्ट एपिथेलिया क्या डिस्कस किया था? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो अभी अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है उसको जस्टिफाई करता हुआ ये suppose any body part, or I basically want to just peep into the human integument, बॉडी में मौजूद जो टॉप मोस्ट कवरिंग स्किन इंटेगुमेंट के फॉर्म में है, उसका एक लेयर हम ऐसे कैसे उठा के बाहर लाते हैं। So these are the hairy extensions on the skin. Now definitely जिसे हम स्किन कह रहे हैं वो रिस्पेक्टिवली 2 लेयर्स के बने हैं, ठीक है। हालांकि इसके नीचे भी फिर हाइपोडर्मिस होता है, रेस्ट मस्कुलर लेयर, वॉलंटरी मसल्स के जो बंडल्स होंगे, लेकिन कंप्लीट इंटेग्यूमेंट की अगर हम बात करें उसमें जो स्किन है, क्योंकि स्किन प्लस हाइपोडर्मिस प्लस, जिसको मैं डॉटेड प्रेजेंटेशन से यहां एग्जिबिट करना चाह रहा हूं, अगेन आज इस डिस्कशन अगर मैंने कॉम्पिटिटिव विंडो लिखा है एंड दिस इज व्हाट एनसीईआरटी स्पेशल, मतलब किसी भी टॉपिक्स में क्लासी टच देने का तरीका पढ़ने को, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियम एंड थ्रू आउट, हर जगह इतने लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स है, लेकिन फॉर क्रैकिंग पीएमटी इन फॉर्म ऑफ जो नीट का पैटर्न है पिछले कुछ 5 साल से जो आ रहा है, टारगेट ओरिएंटेड एनसीईआरटी को हम एक फंडामेंटल बेसिक रेफरेंस बुक मानते हुए पढ़ रहे हैं, तो मैं एक डायग्राम से पूरी एनसीईआरटी के कंपाइलेशन, जिसमें भले आज मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू नहीं पढ़ाया, लेकिन एक ऐसा डायग्राम जिसमें सारी चीजें सक्सेसिव आ जाएगा कि एक स्किन ही कितने सारे टिश्यूज से बने हैं, क्योंकि स्किन इटसेल्फ इज एन ऑर्गन डेफिनेटली मेड अप ऑफ मोर देन 1 टिश्यू। हालांकि हम तो अभी तक एक ही टिश्यू को डील किए हैं अभी तक, एपिथेलियम,
तो वो एपिथेलियम तो है ही, साथ ही साथ और एसोसिएटेड टिश्यूज कैसे असेंबल होते हैं एक ही जगह में, तब जाके एक बॉडी का फंक्शनल ऑर्गन बनता है। वेयर स्किन इज ऑलवेज, इंटेग्यूमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। स्किन के लिए ये कहावत कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे बॉडी के लिए मल्टीपल हिडन और विजिबल फंक्शंस वो कर रहा होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उस बात को जस्टिफाई करते हुए सबसे टॉप मोस्ट लेयर एपिडर्मिस और नीचे होता है डर्मिस, और डर्मिस के भी नीचे जो होता है हाइपोडर्मिस। अरे मेरी बात समझ में? नाउ दैट्स कंप्लीटली, मतलब तब जाके ये वर्ड लागू होता है इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कब कहते हैं? जब इंटेग्यूमेंट प्लस डेरिवेटिव्स, प्लस व्हाट आर डेरिवेटिव्स, जिसमें से एक यहां डायग्राम में अभी दिख रहा है हेयर्स, सॉफ्ट एंड हार्ड डेरिवेटिव्स। हार्ड डेरिवेटिव जितने भी एक्सोस्केलेटन है, और सॉफ्ट डेरिवेटिव्स जो इसके अंदर एम्बेडेड ग्लैंड्स, रिसेप्टर्स। स्किन एक्ट एज अ जनरल रिसेप्टर, स्किन एक्ट एज अ, वो भी हमें पढ़ना है आने वाले दिनों में चैप्टर नर्वस सिस्टम के साथ कंटिन्यू में। तो ठीक है, वॉट एवर, इसको जरा सा एलॉबरेट करें, मतलब ये तो एक प्रेजेंटेशन था। So that what was epidermis। बस इस डायग्राम को इसमें सेट कर दो, हो गया एग्जाम्पल, स्किन एपिडर्मिस। सेम इसी चीज को मुझे बनाना पड़ेगा फिर दोबारा यहाँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। यहां सिर्फ इतना लिख दूंगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस keratinized epithelia, rest thereby making the skin true waterproof, germ-proof, offering that physical barrier and thereafter the by birth immunity. By birth immunity, non-specific, nothing special. Being belonging to same species, all of us share this ability and property. Nothing special. कि आपने एक्वायर किया, मैंने नहीं किया है, आपने किया फिर आपने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं, सब में मौजूद है एज अ ह्यूमन बीइंग इंटेग्यूमेंट टू ऑफर। ऐसे बहुत सारे काम करता है, ये तो उसका केवल एक पहलू है, सिक्के का एक पहलू डिस्कस हुआ है। बट अगेन द इंटैक्ट स्किन एपिडर्मिस वो अपना प्रोटेक्टिव रोल कर रहा है, बट वो अपने जो अंडरलाइंग लेयर्स से जुड़ेगा कैसे, उसको सपोर्ट चाहिए। It need a technical support. That support, that mechanical strength is being offered with connectivity by connective tissue by, यानी फिलहाल तो मैं यहां लिख रहा हूं डर्मिस, क्या लिख रहा हूं? दिस इज डर्मिस लेयर। लेकिन डर्मिस खुद एक अनडिफरेंशिएटेड, जैसे ये और ये डिफरेंशिएटेड है, लेकिन यहां ऐसा डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता। वो तो बारीकी से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हिस्टोलॉजिकल स्टडी जब करते हैं तब दिखता है कि एक बारीक सा अनडिफरेंशिएटेड डिवीजन है, लोअर लेयर अपर लेयर। डर्मिस का ये क्या है? अपर, और ये क्या है? लोअर लेयर। अपर लेयर बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना होता है? एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना होता है? जबकि जो लोअर लेयर बना होता है उसमें कोलाजन फाइबर्स एक रेगुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, मतलब है ना, ये तो एक प्रेजेंटेशन है, बस एक आर्बिट्री इलस्ट्रेशन। बंडल्स ऑफ कोलाजन एक रेगुलर पैटर्न से मौजूद होते हैं पैरेलली, और रेगुलर से क्या था? टफनेस आएगा, थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कोलाजन फाइबर्स का। और कोलाजन फाइबर कंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू इन डेंसिटी, यानी अब मुझे यहां लिखना पड़ेगा, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट डेंस फाइब्रस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि दो तरह के होते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। एवरीवन, सबको आ रही बात समझ में?
व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स टाइप प्रॉपर्टीज, ये तो आने वाले दिन में हम पढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से आज एपिथेलियम इतने समय से पढ़ रहे हैं, पिछले 5वें क्लास पे हम पहुंच चुके हैं, पढ़ते पढ़ते एक टेंडेंसी समझ में आ गई है बेसिकली टिश्यू पढ़ने का, कि व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, हाउ इट इज मेड अप ऑफ, हाउ इट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, और कहाँ कहाँ मौजूद होता है और वहां रह के वो क्या करता है। एक दिन ऐसे ही हम कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ेंगे, लेकिन आज मैंने हेडिंग ही दिया आपको, कॉम्पिटिटिव विंडो एनसीईआरटी स्पेशल। So this is the actual ultimate way of applying the knowledge of the subject। इतने दिन तो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ये एप्लीकेशन है कि असेंबल करके पढ़ना। तो एपिथेलियम तो एक्सपीरियंस किया, साथ ही साथ क्या देखा हमने, दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू भी आज पता चल गए। और स्किन, बार बार जो नाम आ रहा है सारे तरह के टिश्यूज, जब लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगा स्किन का नाम आएगा, लेकिन स्किन में भी कौन, डर्मिस, डर्मिस का भी कौन, और जनरल स्पेसिफिक, जनरल स्पेसिफिक, अपर डर्मिस। व्हाइट डेंस क्या होता है, उसमें कौन से फाइबर्स ज्यादा है, क्यों है, वगैरह वगैरह सारे प्रॉपर्टीज। बट एट लास्ट एग्जांपल, मेनी एग्जांपल, उनमें से आज एक एग्जांपल पता चल गया, और वो कौन सा है, कौन सा है, लोअर लेयर ऑफ डर्मिस। इसी तरह से एट लास्ट अब इस पूरे स्किन को नीचे मसल बंडल के साथ जोड़ने का भी काम, साथ ही साथ कुछ एडिशनल रोल भी हो जाएगा। पहले तो कनेक्टिव है तो जोड़ना तो है ही, अटैचमेंट्स, पैकिंग, इसको इसके साथ किसने पैक किया, इसने किया, साथ में इसके लिए जो काम कर रहा है। और क्यों ना करे, क्योंकि ऑलवेज एपिथेलियम इज बीइंग अंडरलाइंड बाय विच टिश्यू। सब लोग टीचिंग में ये फॉलो कर रहे हैं कि जैसा जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं वो आगे जाते जाते सब बातें प्रूव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते बिल्कुल डायरेक्शन ही चेंज हो गया और कोई नई बात ऐसा आ गया जो डिस्टर्ब कर रहा है पुराने कंसेप्ट को। दीज आर दी सेल्स, ऊपर के सेल्स डेड हैं, अरे ये सेल्स तो लिविंग है ना, यही तो इनको न्यूट्रिशन कौन देता है, अंडरलाइंग, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू ऑलवेज इटसेल्फ इज एवेस्कुलर। मतलब बार बार दिमाग पे स्ट्राइक होने चाहिए पॉइंट्स, और इसी को ही कहते हैं कंसेप्चुअल स्टडी। इसी के बोलने से नहीं होगा, खुद एहसास होना चाहिए। तो कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है, अब इसको भी जोड़ना है। अब इसके नीचे नो, दिस इज अ प्रेजेंटेशन, ऐसे बबल्स जैसे बना बनाकर मैं हाइपोडर्मिस, कौन सा लेयर दिखाना चाह रहा हूं, है ना, फैट से भरे हुए, फैट ड्रॉपलेट्स से भरे हुए वो सेल्स, उनके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म कम होता है, एक दरकिनार हो जाता है, बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। और ऐसे एडिपोसाइट सेल्स, ऐसे सेल्स के असेंबली से जो कनेक्टिव टिश्यू बनता है, होता कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन मॉडिफाइड टू बिकम सम स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एडिपोस कनेक्टिव। कौन सा, हाइपोडर्मिस। पूरे बॉडी में एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे कैसे मौजूद होता है, मेमेलियन प्रॉपर्टी, हाइपोडर्मिस किसकी तरह मौजूद होता है, hypodermis, which is made up of adipose connective tissue, white adipose, to offer insulation, to offer reservoir of food। आ रहा है सबको समझ में। इसके अलावा जितने भी बॉडी के अंदर के वाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल वाइटल सॉफ्ट ऑर्गन्स, उनके चारों ओर भी वो फैट के लेयर मौजूद होते हैं, एंड गिव व्हाट, प्रोटेक्शन, है ना, कुशन इफेक्ट। कैसा इफेक्ट देते हैं, गद्देदार, आसपास के टिश्यूज से का भी दबाव ना झेल, मतलब पड़े तो उसको झेल ले, और किसी भी तरह का बॉडी जर्क मूवमेंट्स करे तो वो उन लोग को डैमेज ना पहुंचे, ये उसका काम होता है। ये सब पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन आज एक डायग्राम ऐसा जिसमें आपने 5 टिश्यूज एक साथ देख लिए, डिड यू एक्सपीरियंसिंग दैट फिनोमेना, 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू और एक तरह का एपिथेलियम, एवरीवन, ठीक है। एक मूवी आई थी अभी अभी कुछ समय पहले, है ना, बागी द रेवल, अरे यस और नो, आ रही बात समझ में। और उसमें जो ट्रेनर था, द मास्टर, ही एक्चुअली बैडली ट्रीटेड हिज ट्रेनी स्टूडेंट वंस ड्यू टू सम रीजन। और फिर जब वो थोड़ा होश में आता है तो कहते हैं ट्रेनिंग चालू करें, क्या कहता है डायलॉग, मूवी तो सब लोग देखते हैं लेकिन सीखने वाली बात क्या है, उस मूवी में क्या बोला गया है, ट्रेनिंग चालू करें, मतलब ट्रेनिंग सॉरी कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट कहता है शुरू ही कब हुआ था। फिर ट्रेनर उसको किक्स एंड पंचेस देता रहता है, एंड समहाउ द स्टूडेंट एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अरे यस और नो।
और अचानक फिर उसे खुद ही एक सबकॉन्शियस माइंड से एहसास होता है कि अरे मैं ये जो कर रहा हूँ ये कैसे, मतलब वो रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉल करता है किसके साथ क्या। तो ट्रेनर कहता है ट्रेनिंग तो पहले दिन से ही चालू हो गया था, ट्रेनिंग तो, अरे आया समझ में? तो तुम्हारा भी ट्रेनिंग पहले दिन से ही चालू हो गया है। अरे सबको आ रहा है समझ में? देखो ये तो सिर्फ जज्बात होते हैं जो एक स्टूडेंट टीचर के बीच बनता है। रोज रोज टीचर बोले नाउ टुडे वी विल डू द मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टडी, बोलने से कुछ नहीं होगा। पढ़ते जाए, समझते जाए, पढ़ते जाए, लिंक करते जाए। मैं तो आपको कह रहा था ना, मैं तो यही बात खत्म करके आगे एक्सप्लेनेशन को बढ़ा देता। बट लेटस, ये बोलते हैं ना, शेर शेर का नेचर क्या है, शिकार पे जंप मारने से पहले 3 कदम पीछे आता है और फिर वो जंप मारता है। इसका मतलब नहीं कि वो डर गया कैट वॉक करते हुए यूं पीछे हो गया। वो पीछे इसलिए गया कि अब वो लीप मारेगा। तो बिफोर यू मूव, फिर पीछे आए, फिर अटैक करें, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे आए, फिर कि अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड में वो होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, अल्टीमेटली उसका एप्लीकेशन क्या है। सिर्फ याद कर लेने से बात नहीं बननी है, वी शुड बी एबल टू अप्लाई कि ठीक है ये तो आ रहा है समझ में कि दिस इज एन एपिथेलिया, इसकी ये प्रॉपर्टीज है, वो फलानी जगह पाया जाता है। साथ ही साथ थोड़ा लिंक कर लिया, कैसे, क्यों। आने वाले दिनों में और एक्सेल कर लेंगे जिस दिन इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। फिलहाल स्किन मैंने कंप्यूटर, सही, दिस इज कंप्यूटर एनसीईआरटी स्पेशल, एक साथ कनेक्टिव टिश्यू के भी एग्जांपल्स। अब आपका होमवर्क है, घर पे जाके टैली तो करो किस एनसीईआरटी चैप्टर के किस पन्ने पे ऐसा कुछ लाइन और एग्जांपल लिखा है कि नहीं, बस। और देन यू कम अप, देन कुछ नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, लिंक नहीं हो पा रहा, आप नहीं समझ पाए, दैट्स द डाउट। मैं क्लियर, आई एम देयर टू क्लियर इट। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, हेडिंग दीजिएगा स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया आफ्टर मेकिंग दिस डायग्राम एंड प्रेजेंटेशन। अगेन इफ आई हैव गिवन द नेम स्पेशलाइज्ड, अगर इसको हम इस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिकली व्हाट डज इट एक्चुअली वांट टू रिवील, what is special about those epithelia which are categorized as specialized epithelia? So first of all, these epithelia are there to avail some exclusive physiological, I repeat, these epithelia are there to avail, है ना, उपलब्ध कराना some special, some exclusive physiological role to body functioning. मतलब दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कवरिंग नेचर। कवरिंग तो है ही, जहां कहीं भी वो लेयर की तरह मौजूद है, एक सरफेस की तरह चीजों का सामना करना, वो सब तो है, प्राइमरी फंडामेंटल्स हैं उसके वो। But now what I am going to discuss, the 4 successive epithelia, they are rather known for their special function, hence called specialized epithelia. तो वही वही स्टेटमेंट और डेफिनेशन यहाँ मेंशन किया कि शरीर की जो भी बेसिक बॉडी फंक्शनिंग जहां जैसा है उसमें इसका कुछ खास एक्सक्लूसिव फिजियोलॉजिकल रोल होता है। ठीक है, देन दे आर सिंपली मॉडिफाइड सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम्स होते हैं उन्हीं में से परिवर्तन करके अपने आप को हल्का फुल्का ट्रांजिशंस करके कुछ बदलाव, मॉडिफिकेशंस,
नियमों से विरुद्ध जाकर, मतलब कहते हैं ना, रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना पड़ सकता है इसमें। व्हाट आर दोज जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने 15 पॉइंट्स लिखे थे? ठीक है, तो लेट अस एक्सपीरियंस इट कि कैसे ये पॉसिबल है। So to begin with, the first epithelial category, that is pigmented. Now the word itself suggests its fundamental role, ki characterized by a presence of some, ये तो हिंट करने वाली बात है। अब वो रोल एक्चुअली क्या है वो हम फिजियोलॉजी ऑफ विजन में देखेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ vision, when we'll deal with the details of eye, human eye as one of the prominent sense organ, as a part of sensory system, as an extension of nervous system to perceive stimulus in the given environment in form of images, किसी भी आसपास के दूर और नजदीक के चीजों को उसके स्ट्रक्चर, शेप, साइज, इमेज से पहचान करके फिर हम अपने जो रिस्पॉन्ड और वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग एंड लिविंग अलाइव, जिंदा रहने की हमारी जो सर्वाइवल वैल्यूज है, where I play that role of photoreceptor followed by visuoreceptor. Photoreceptor तो presence of light, लाइट की उपस्थिति की महसूस कराना, that's a different thing. वो तो अर्थवॉर्म में भी है, उनमें भी आईज है, उनमें फोटोरिसेप्टर है। वो विजुओरिसेप्टर नहीं कि अर्थवॉर्म तुम्हें दिख रहा है, अर्थवॉर्म तुम्हें देख रहा है, मतलब सॉरी, सबको मेरी बात आ रही है समझ में? सिर्फ लाइट का प्रेजेंस उसे एहसास कराता है, हमें लाइट का भी कराता है, प्लस इमेज बनाना, फोटो एज वेल एज विजुओ रिसेप्टर्स। ठीक है, तो उसमें पिगमेंटेड एपिथेलिया कुछ अपना रोल प्ले करता है। तो प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल पिगमेंट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो भी वो एपिथेलियल टिश्यू है, तो एपिथेलियल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ स्पेशल पिगमेंट्स है। और फाइनली ये भी जानना चाहेंगे कि ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया। यानी आज आपके सामने फिर से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया का और एक एग्जांपल। पिगमेंटेड एपिथेलिया खुद एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया का एग्जांपल है। तो वो क्या, क्योंकि अभी अभी यही तो लिखा था आपने में मॉडिफिकेशन ये आया कि पिगमेंट्स है, अब उन पिगमेंट्स का कुछ रोल है, रोल इन फिजियोलॉजी ऑफ विजन। नाउ लेट मी justify my further explanations. Example, retinal pigmented epithelium of retina in human eye. RPE, retinal pigmented epithelium of retina in human eye. तो ये रहा आई बॉल, now this is a mere illustration of the presentation. ये रहा human eyeball with the corneal aqueous chamber part, vitreous chamber part. This is the complete eyeball. और eyeball का एक area somewhere over here, if you make a cut, खुद आईबॉल का वॉल 3 लेयर्स के बने हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड। ये रहा स्क्लेरा, ये रहा कोरॉइड, स्क्लेरा, कोरॉइड। अब ये रहा रेटिना। नाउ द इनरमोस्ट लेयर, दैट इज रेटिना। रेटिना खुद सक्सेसिवली फ्रॉम आउटर टू इनर, फ्रॉम 4 लेयर्स के बने। कितने लेयर्स? एनसीईआरटी में 3 लेयर मेंशन्ड है, लेकिन देयर आर 4 लेयर्स एक्चुअली फंक्शनली। और 4 लेयर्स मेंशन करना इसलिए जरूरी है, तभी तो वो रॉड और कोन सेल्स, 2 तरह के विजन, डार्क और लाइट विजन, जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, तो उसमें यही तो वो लेयर है जो डार्क विजन में पार्टिसिपेट करता है। किसमें? लाइट विजन में भी करता है, लेकिन मेन रोल डार्क विजन के लिए। तो वो क्या है, सब कुछ उस दिन आएगा, एक दिन समय।
लेकिन आज एक बेसिक आइडिया हो गया कि ठीक है, पिगमेंटेड एपिथेलिया एज आरपीई, द ओनली एक्सक्लूसिव एग्जांपल इन द ह्यूमन बॉडी, और कहीं नहीं, एंड प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ लेयर इन द रेटिना। रेटिना खुद मल्टी लेयर्ड है, 4 लेयर, उसमें से सबसे बाहरी लेयर, क्योंकि हम स्क्लेरा से अंदर की तरफ आते हैं तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये लेयर बना है सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। और सपोज अब मैं एक रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो पिगमेंटेड है, तो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स है, तो सिंपल क्यूबॉइडल, लेकिन इनमें पिगमेंट्स भरे हुए हैं इधर, एंड दैट इज व्हाट आरपीई, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो एक सिंपल सी बात है, लाइट आके स्ट्राइक करता है, ठीक है ना, ऐसे जाता है, इस लेयर से सबसे पहले टकराता है जाके, इन सबको क्रॉस करके, फिर रिवर्स, यानी लाइट के डायरेक्शन के रिवर्स रेटिना काम करता है हमेशा। द लेयर्स ऑफ रेटिना, द 4 सक्सेसिव लेयर्स ऑलवेज परफॉर्म इट्स फंक्शन जस्ट रिवर्स ऑफ द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी तो कैसा है, या लाइट का डायरेक्शन क्या है स्ट्राइक करने का, ये रहा, जस्ट उसके रिवर्स में हिस्टोलॉजिकली वो लेयर्स काम करते हैं, एंड दैट व्हाट मेक्स द ह्यूमन आई टू बी रिवर्स टाइप। क्या कहते हैं, सारे इन्वर्टिब्रेट्स और बाकी पूरे एनिमल किंगडम में नॉन रिवर्स टाइप ऑफ आईज होते हैं, जबकि ह्यूमन आई कैसा है, रिवर्स टाइप। व्हाट डज इट मीन, ये उसका एक्सप्लेनेशन था। बाकी बातें आपको फिजियो में और बताया जाएगा। फिलहाल आज आपने सीखा ह्यूमन आई के रेटिना में मौजूद है एक खास एपिथेलिया, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलिया। Now the next category, ट्रांजिशनल एपिथेलिया, है ना, ट्रांजिशनल एपिथेलिया। Now, before again going through the actual presence of this tissue in the body, let us characterize it. Now, this is a tissue of change. मतलब मैं लिटरली इसकी मीनिंग को जस्टिफाई कर रहा हूँ। ट्रांजिशन मतलब ही बदलाव। तो दिस इज अ टिश्यू ऑफ चेंज। व्हाट इज द चेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया का मॉडिफिकेशन है। क्या मॉडिफिकेशन है देखते हैं, डबल एस्ट्रिक साइन बना के। मॉडिफाइड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया है। ability to exhibit stretching, ability to exhibit stretching, that is है ना, मस्कुलर सेल्स की तरह बिहेवियर बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जबकि दैट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एपिथेलियम। ये तो कुछ बिल्कुल अलग से बदलाव है। इट्स अ टिश्यू ऑफ चेंज, बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टीज में चेंज ला दिया। मतलब ये तो कवरिंग टिश्यू था, अब इसमें स्ट्रेचेबिलिटी कहाँ से आ गई, इलास्टिसिटी कहाँ से आ गई है?
बोले सर वो साइटोलॉजी में पढ़ते तो हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होंगे प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म में, वो तो सब में है सब, लेकिन सारे सेल्स तो ऐसा नहीं कर पाते। तो ये अचानक से ये तो एपिथीलिया है, इसको तो कवरिंग करना चाहिए। नाउ दैट्स द चेंज, दैट्स द मॉडिफिकेशन। और इसके लिए इसने अपने आप को, पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे बड़ी बात, डेंजर साइन, इट लैक्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। अपने बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव लाता है, चेंज लाता है। इट हैज लूजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट बाय लूजिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब नीचे सेल्स को अटैच करके फिक्स रखने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, सेल्स आर फ्री नाउ टू एग्जिबिट दैट स्ट्रेचेबिलिटी by contraction and relaxation as per the need. So that's the one of the fundamental aspect, followed by and also possess an additional protective top layer of glycoprotein of ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये क्या है, क्यों है, क्या करता है देखेंगे, बट ठीक है, दीज आर ऑल करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांजिशनल एपिथेलिया। एंड फाइनली ऑल्सो है ना, पॉपुलरली नोन एज यूरोथेलियम, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज, अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है, इट हैज गॉट एन एक्सक्लूसिव पोजीशन इन द बॉडी, ओनली कन्फाइंड टू यूरिनरी सिस्टम, ओनली कन्फाइंड टू द यूरिनरी सिस्टम। उसी के किसी ऑर्गन में लाइनिंग्स की तरह मौजूद होगा, इंपार्टिंग इट्स रोल, फंडामेंटल रोल फॉर द बॉडी फंक्शनिंग। So that's all about transitional epithelium। और इस बात को जस्टिफाई करते हुए the exclusive example regarding transitional epithelia, though the structures are ureter and urinary bladder। So being urinary bladder a hollow bag like structure, again urinary bladder wall है ना, bladder wall being taken out है ना, यहाँ से मैं हिस्टोलॉजिकली वो लेयर ऐसे बाहर निकालता हूँ और सक्सेसिवली वो कुछ लेयर्स के बने होंगे। एंड वी आर कंसर्न विद द इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसमें दो कंडीशंस है इसमें भी। अब मैंने दो अलग अलग ऐसे विद के क्यों बनाए हैं। जब स्टमक एम्प्टी होता है, सॉरी द ब्लैडर इज एम्प्टी, तो ये रहा इनर मोस्ट लेयर, बाकी लेयर्स हैं मसल्स लेयर्स और बाकी, हमें सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल किसका बना होता है। आप देख सकते हैं जो बुकलेट आपको मिला है उसमें डायग्राम बना हुआ है, मतलब ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स का है ना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन। व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टी, यानी यूरिन नहीं भरा हुआ है, तो इट इज अगेन श्रंकन, सिकुड़ा हुआ रहता है। द
layer is little bit wide क्योंकि cells सब अपने normal shape में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे यूरिन फिल होना शुरू होता है, फिल्ड, तो डेफिनेटली स्ट्रेच होगा, ये ब्लैडर स्ट्रेच होगा, मसल्स तो इसके नीचे जो स्ट्रेच करेंगे, लेकिन इट शुड बी अकम्पेनिड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द इनरमोस्ट लेयर एपिथेलिया। वो अगर इंटैक्ट रह गया तो वो दिक्कत आएगी, तो इट शुड बी स्ट्रेच अलोंग विथ सिंक्रोनाइजेशन विथ हुम, मसल्स, स्मूथ मसल्स का जो लेयर है। सबको आ रहा है समझ में? तो ठीक है, कहने का मतलब है कि ये था पोजीशन, सी द ट्रांजिशन, बदलाव आएगा, दिस इज द टिश्यू ऑफ चेंज, जैसा लिखवाया जाएगा वैसा ही आपके प्रेजेंटेशंस होंगे। यू शुड बी एबल टू वंस कोलैबोरेट, बस एक बार समझ में आ गया, बस देन द स्काई इज लिमिट, सीधा क्वेश्चन सॉल्व। तो जो बातें यहाँ लिखवाई गई है उसी को जस्टिफाई करता हुआ, जब एम्प्टी होता है ऐसा रहता है। द टॉप लेयर सेल्स आर लाइंड बाय अ glycoprotein covering, and that is what, glycocalyx. To prevent from harmful effect of urine, throughout the life, and 24 hours continuously, more or less urine is going to be hold down in the urinary bladder, and this is the area ureter जहां से वो recurrently pass होता रहेगा। So it has going to get that exposure. That liquid is one of the waste elimination of the body, containing indeed all the nitrogenous waste. तो underlying cells और खुद पूरा जो bladder है उसको नुकसान ना पहुंचे। That's the role of that non-porous glycoprotein layer called glycocalyx. So that what it makes a specialized epithelia, imparting some pivotal role for the body physiology. कि बिफोर दैट एक्ट ऑफ वॉइडिंग द यूरिन, जिसे हम मिक्सचुरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्सचुरेशन, उससे पहले ये इस पे रहता है और रिलेटेड फंक्शनिंग में हेल्प करता है। Next very significant specialized tissue, that is germinal epithelia. Now characteristically, first of all, some modified simple cuboidal epithelia. Now again an example for simple cuboidal epithelia. Now due to that modification, this epithelia participate in reproduction. How come so possible? It is exclusively present in gonads. ये एपिथेलिया एक्सक्लूसिवली सिर्फ गोनाड्स में पाया जाता है। तो so then the cells of the epithelia
participate in formation of gamete cells जिन्हें हम germ cells कहते हैं, hence called germinal epithelia. These are the only somatic cells, क्योंकि शरीर की सेल से तो somatic है, later they become germinal. These are the only somatic cells of body which under hormonal trigger. What is that hormonal trigger? How it has been basically it originate? वो सब एक अपने आप में कहानी है. That's a different story and all confined to the discussion of rules and regulations, attributes of sexual reproduction. वो तो देखेंगे आने वाले दिनों में. But histology में जो बात reveal हो रही है, these are the only somatic cells of body which undergo hormonal trigger to exhibit मियोसिस. और कोई भी बॉडी का सेल जो मियोसिस एग्जिबिट कर सके वही करता है टू एक्ट एज मियोसाइट्स. टू एक्ट एज मियोसाइट्स, गैमेट फॉर्मिंग सेल्स को हम मियोसाइट्स कहते हैं. एंड द मियोसाइट जो बनते हैं वो है स्पर्मेटोगोनिया इन द मेंस बॉडी एंड इन वुमेन इट इज oogonia. स्पर्मेटोगोनिया थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूसली बनते हैं, लेकिन oogonia तो बर्थ से पहले ही बन जाते हैं इन द फीटल मंथ, एंड आफ्टर बर्थ नो मोर oogonia इज एडेड. Now these are those cracking statements of your NCERT, और इन्हीं को जस्टिफाई करने के लिए बाकी सारी भूमिकाएं बांधी जाती हैं. अरे आ रहा है समझ, मतलब द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ फिजियोलॉजी पढ़ा जाता है कि अगर ऐसा कहा जा रहा है व्हाई इट इज सो क्लियर. So now that's all regarding your germinal epithelia. Example, in male it is the testes which are going to exhibit that phenomena, and in female these are the ovaries which are going to possess the germinal epithelia. Now, as usual, to justify all these statements, we will go through an illustration by taking the example of male gonad, testes. Now, basically in nature, talking about the human body as considering taxonomically as a primata mammal, mammals exhibit an exclusive phenomena due to its unique position. What is the position of testes in mammals? Extra abdominal. क्या कहते हैं उस phenomena को? So that is below the genital. There is a skinny pouch-like extension. What is recognized as scrotum. Now what that possesses the testes. Now that's the location. बेसिकली स्क्रॉटम के अंदर एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा पैकिंग होता है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड. क्या कहते हैं? ये अंदर ही अंदर ये वास्ट डिफरेंस जो एब्डोमेन में एंटर करता है, और ये रहा स्क्रॉटम. स्क्रॉटम स्किनी पाउच लाइक एक्सटेंशन, लेकिन ये जो एक पाउच जैसा, पोटली जैसा ये स्ट्रक्चर जिसको स्पर्मेटिक कॉर्ड पूरा कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का, ये खुद
स्क्रॉटल वॉल, ये रहा स्क्रॉटल वॉल, स्किनी पाउच लाइक एक्सटेंशन, उसकी कुछ तो थिकनेस होगी, सक्सेसिव लेयर्स जो भी है आने वाले दिनों में देखेंगे। तो इसके साथ ऐसे ये जुड़ा रहता है। तो नीचे से होल्ड गुबरनुकुलम कॉर्डिस कौन करता है? खुद गुबरनुकुलम कॉर्डिस हिस्टोलॉजिकली व्हाइट डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। तो दैट्स द पोजीशन। अब आप देखिएगा व्हाट आई एम डूइंग कि ठीक है ये तो बताया मैंने, अभी कुछ ना बनाए आप लोग, मैं पहले पूरा कंप्लीट करूँ ना एक्सप्लेनेशन बना के। सपोज इस तरह से मैं कट कर देता हूं एक लेयर को, और अंदर इसके अंदर टेस्टिस ऐसे अरेंज थे कि, है ना, अब ये नीचे आ गए, मतलब ये तो एरिया कट गया। ये रहा एक्चुअली टेस्टिस, और जिसके तरफ इस कवरिंग के बाद भी आधा कवरिंग ये रहता है ट्यूनिका वेजिनालिस। किसकी कवरिंग रहती है ये? And this is actually that histological structure what we are actually interested in learning, that is testes। और बीचों बीच अगर एक लाइन ड्रॉ करें, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर रीजन है, तो टेस्टिस के पोस्टीरियर रीजन में अंदर ही अंदर एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब गया, दैट इज एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से ऐसे वास्ट डिफरेंस यहां से गया जो ये दिख रहा है, राइट? आया सबको समझ में एवरीवन? अब नहीं भी आ रहा होगा तो थोड़ा सा परसिवरेंस रखें, धैर्य आएगा आने वाले दिनों में समझ में, ठीक है। So that's the actual position of testes, and thereby making scrotum truly to play the role of thermo regulator, bringing the temperature around the testes something below the body temperature, around 2 to 3 degrees less, 37 से यानी 34 35 बनाना, और that's the temperature required for so called the physiological activity called spermatogenesis। तो आज हम जिस एपिथेलिया को पढ़ रहे हैं, which is basically playing that role in reproduction to, है ना, avail the gamete cells, haploid cells through that characteristic meiotic event, लेकिन इसके लिए उसको एक exclusive arrangement, एक histological accommodation चाहिए, जगह चाहिए उसको। And nature has provided that space in the gonads, male and female gonads, and that characteristic layer bearing all its cells, they are not the simple cells, they are now some modified special cells। बॉडी में तो बहुत सारे सोमैटिक सेल्स है, बट दे नीड अ डिफरेंट स्पेस फ्रॉम देम। शरीर के सेल्स ये भी हैं, लिखा तो है सोमैटिक सेल्स, लेकिन उनको समय समय पे अपना पिवटल रोल प्ले करना है। तो मैंने इन दोनों में से एक का एग्जांपल लिए, टेस्टिस बेटर एंड विच सिंपली वर्क्स, लेकिन ये तो एक एडिशनल पोजीशन था। तो आज आपको फिर से एक ही डायग्राम में रिस्पेक्टिव एग्जांपल सामने आ गए आपके, है ना। अब इमेजिन करिए कि मैं पूरा इससे बाहर इसको निकालूं, स्क्रॉटम से बाहर टेस्टिस को हम बाहर निकालने जाते हैं, मतलब सिर्फ जैसे ही स्पर्मेटिक कॉर्ड पूरा हटा देते हैं, ये क्या है? Then the structure what comes out is testicle। क्या कहते हैं उसको? ठीक है, ये हाफ ऐसा कैप लाइक कवरिंग होता है, फिल्ड विथ अगेन लिक्विड, इसमें सिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है एक्चुअली? जिसको यहां मैंने ऐसा सिंगल लेयर दिखा, एक्चुअली ऐसा डबल मेम्ब्रेन जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, और उससे फिर से कुशन जैसा, जिससे कि सामने से एंटीरियर से किसी प्रकार का जर्क मैकेनिकल वो बियर कर लेता है। दैट्स द रोल ट्यूनिका वेजिनालिस। कौन सा लेयर?
ये फंडामेंटल टर्म्स हैं, ये यही तो बारीकी है जो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिस एंड टेस्टिकल? टेस्टिस तो ये रहा एक्चुअल, लेकिन टेस्टिस विथ इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, विथ पूरा टेस्टिस एक्चुअली डक्ट सिस्टम ही है, विच बिगिंस विथ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और वास इफ्रेंशिया तक एंड होता है। कहां तक? पूरे मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम में 8 डक्ट्स होते हैं। कितने डक्ट्स होते हैं? 8। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टा, रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंस, यहां ये 4 अंदर तक रहते हैं, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। और उससे बाहर फिर 4, एपिडिडाइमिस दिख रहा है, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। 4 अंदर 4 बाहर। तो क्वेश्चन ऐसे ही तो बनता है, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, इंट्रा एक्स्ट्रा, टोटल 8। दिस इज द सीक्वेंस, यानी स्पर्म जब कभी भी बन के रिलीज होगा, व्हाट विल बी इट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे। अब जिस ऑप्शन में इन आटो के नाम या इनमें से कोई भी 5-6 के नाम लिखे हो, लेकिन आपको सीक्वेंस सही पता होना चाहिए। पूरे 8 नाम एक साथ नहीं लिखे होंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? बहुत कुछ पढ़ने के बाद बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस, मतलब किसी भी टॉपिक का सबसे अटर मोस्ट सिंपल क्वेश्चन और एक्सट्रीम पे जाके कंसेप्चुअल पॉइंट का क्वेश्चन क्या बन सकता है, बस ये है हमारा रेंज पढ़ाई करने का। तो डे 1 से मैं आपको पढ़ा तो हिस्टोलॉजी रहा हूं, बट यू आर एक्सपीरियंसिंग। अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, उनको मैं कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश कर रहा हूं कि कौन सा हिस्टोलॉजी कहां कैसे मौजूद है, और एक्चुअली ये जो लाइन लिखा हुआ है वाकई में प्रूव हो रहा है कि नहीं, वो भी साथ में आप एक्सपीरियंस करें। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस दिन मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। और आपको क्या एहसास होना चाहिए, ट्रेनिंग तो डे 1 से ही चालू हो गया था। अरे कुछ आया समझ में? अरे एवरीवन, बायोलॉजी नीड्स a डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड टू स्टडी। ये आप ध्यान में रखें। वो आप ऐसे मियरली यहाँ रिलक्टेंट होकर ना बैठे कि सर पढ़ाते जाएंगे और हमें सब समझ में आ जाएगा। आपका प्रेजेंस, आपका इंटरेक्शन जरूरी है। यू हैव टू लर्न एंड लिसन एंड कोऑर्डिनेट विथ एवरीथिंग, है ना? और पीछे से बैक बाइटिंग और कमेंट ना करें, क्योंकि जिस दिन मैं आपको देख लूंगा तो उस दिन आप मेरा दूसरा रूप देखोगे, ठीक है ना? मैं जितना पैसिव और मतलब आप लोग के लिए अच्छा टीचर बनूंगा, उतना ही बुरा टीचर बन जाऊंगा 2 मिनट में। मैंने यहाँ से सुन लिया है। एंड बॉयज, क्या है कि आज 5वें क्लास है, मैं पहले दिन ही क्लियर कर दूं, सेशन में मेरे क्लास में डिसिप्लिन में रहना, नहीं पढ़ना है बिल्कुल बाहर हो जाए। क्लास में मेरे आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं जब हंसूंगा तो ही हंसना, जब रोएंगे तो रोना, बस यही है डिसिप्लिन। आई एम नॉट हेयर टू मेक यू एंटरटेन विद दिस सब्जेक्ट। वो तो एक 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई होनी है, 2 घंटे होना है, तो मेंटली वो चार्ज रखने के लिए बीच में थोड़े बहुत लूज टॉक होते हैं, बट दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस। ये आप सब लोग जहन में रखें। अब यहाँ बिल्कुल उम्मीद ना करें कि जूलॉजी आके बहुत मेस्मराइजिंग वे में और ऐसा पढ़ा देंगे और मजा आ गया। मजा वजा दिलाने के लिए पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई बिल्कुल सिंसियरली होती है, लेकिन हाँ उसमें कुछ टर्म्स, कुछ चीजें लिंक बनती हैं जिसमें थोड़े गॉसिप्स आ जाते हैं। बट द थिंग इज यू शुड बी कंसंट्रेटेड टू योर एक्चुअल कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? आइंदा ध्यान रखें, क्योंकि अगर मैंने आज सुन लिया तो एक दिन नजर में भी आ जाओगे। ओके नाउ, सो टेस्टिकल क्या एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ सिंपली टेकिंग आउट दी, नाउ दिस इज एन आर्बिट्री रिप्रेजेंटेशन की रेस्ट सभी चीजों को हमने एक्सक्लूड कर दिया है, सबसाइड कर दिया है। एंड देन इफ वी गो थ्रू द क्रॉस सेक्शन लॉन्जिट्यूडनली, क्रॉस सेक्शन लॉन्जिट्यूडनल हम कट करते हैं, तो व्हाट्स द अपीयरेंस इनसाइड? So the complete testis is first of all lined by a testicular wall called tunica albuginea layer. Testicular wall, histologically again made up of white fibrous connective tissue, and internally it again get partitioned by a division called mediastinum. Further, the testes internally develop some conical shaped compartments. Conical shaped
compartments. These are respectively called testicular lobules and their number is around 250 per testes. हालांकि यहां मैंने एग्जिबिट करने के लिए 6-7 जो भी बनाए हैं. Now each testicular lobule is characterized by presence of 1 to 3 highly coiled these are so called the actual functional structure seminiferous tubules. Seminiferous tubules. ठीक है ना. रेस्ट आगे डक्ट सिस्टम में ट्यूबुलर रेक्टाई रेटी टेस्टिस फिर वास एफ्रेंशिया वो आने वाले दिनों में चैप्टर रिप्रोडक्शन में देखेंगे. फिलहाल मैं इस पर हाईलाइट करना चाहता था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल functional structure actual functional unit है because now this time if I happen to make a seminiferous tubule इसको ऐसा कट करते हैं और being a tubule since I am calling it as a tubule definitely it has going to have a lumen. Here a lumen and this is the seminiferous tubular wall. Now that wall is being characterized by that innermost lining the gonads possess the presence of this exclusive simple cuboidal epithelia to participate in reproduction. जो लिखवाया आपको इसको एक्सपीरियंस करें यहाँ पर. So these are those characteristic cells followed by this is the germinal epithelia. Now this is the germinal epithelia or again if we have a cut over here of this wall इस वॉल को ऐसा कट करके बाहर निकालें. This is the modified germinal epithelia made up of two cell types. The cuboidal shaped male germ cells फिलहाल ये testes में है and modified germinal इसलिए क्योंकि pure simple cuboidal होता तो सिर्फ cuboidal cells होते हैं लेकिन उसी बीच कुछ cells लंबे ऐसे columnar shaped हो जाते हैं to become an mother cell nourishing cells called Sertoli cells. Now that what makes it special. So these are those cells which are under those hormonal trigger by GNH, by gonadotrophin hormones and at certain stage of life and that's the different story. Once it begins and thereafter what happens is a regular meiotic action yani gametogenesis. Gametogenesis participate hoga, exhibit hoga. That's gonad acting as a primary sex organ due to a special histological lining germinal epithelia. Same is the story regarding ovaries. Ovary में भी ऐसा ही होता है and playing that role. ये तो आपने लिख लिया होगा है ना.
modified simple columnar cells, act to play role in perception of senses in form of external stimulus. है तो एपिथेलियम, लेकिन दे पार्टिसिपेट एंड कोलैबोरेट विद नर्वस सिस्टम, उनके साथ साझा करते हैं अपने फंक्शन को और हेल्प करते हैं भापने में, पहचान करने में, परसेप्शन ऑफ सम सेंसेस इन फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, एंड फॉर दैट दे पोजेस three types of cells in their lining. So अलाइक pseudostratified, pseudostratified भी जो है उसमें तीन तरह के सेल्स थे, elongated columnar cells, basal cells और goblet cells. goblet cells के वजह से those are unicellular gland. एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है उसमें यूनिसेलुलर ग्लैंड समझाते हुए pseudostratified का डायग्राम बना हुआ है, और वो एपिथेलियम बॉडी के सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ही लिमिटेड है टू प्ले दैट रोल ऑफ बोथ ब्रिंगिंग सम फ्रिलिंग एक्शन जिससे एयर और डस्ट पार्टिकल लगातार मूव करे, और सॉफ्ट और सपल वेट मॉइस्ट नेचर म्यूकस बनाए रख सके. तो अभी अभी जो आपके सामने स्टेटमेंट आया इसमें भी तीन तरह के सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स, इसमें भी बेसल सेल्स होते हैं, और मेन है सेंसरी सेल्स. ये अलग से स्पिंडल शेप्ड हो जाते हैं, स्पिंडल शेप्ड. तो ऐसा एपिथेलियम बॉडी के जो चार मेजर सेंस ऑर्गन्स हैं, बिगिनिंग विथ नोज. नोज में यही एपिथेलियम शिनिडेरियन मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, और वो शिनिडेरियन मेम्ब्रेन की मौजूदगी नोज को ऑल्फैक्टो रिसेप्टर जैसा बिहेव करने में हेल्प करते हैं, यानी परसेप्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड, बैड और सो कॉल्ड इमोशनल जो भी स्मेल आपको एहसास कराए, दैट्स अ स्मेल सेंसेशन, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर. सो दैट्स द कनेक्टिविटी. मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिकली ऐसे ही आएगा, नोज primarily a muscular bony elevation of primary respiratory system, but also act as an receptor, sense organ, by behaving as olfactory receptor due to presence of which histological layer? Basilar membrane, Reisner's membrane, Schneiderian membrane, tectorial membrane. आंसर क्या होगा? मतलब नाउ दैट्स क्वेश्चन मेकिंग. राइट, डे वन से मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा. अगर आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा है विद एन व्हाट एम, अल्टीमेट एम है टू अचीव क्वेश्चन क्रैकिंग स्किल इन द एग्जाम. तो थ्रू आउट बायोलॉजी आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो बॉटनी पढ़ते हुए इतने सारे अलग अलग मेम्ब्रेन्स के नाम सुनेंगे. सबसे पहले तो नाम सुन के तुरंत विद इन सम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि वो स्ट्रक्चर और वो टर्म हमने किस यूनिट, किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में, किस रेफरेंस में कैसे क्या पढ़ा था. फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ये डिसीजन लेना है, क्योंकि फर्स्ट डे मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा था, यू विल गेट अ प्रैक्टिकल टाइम ऑफ 30 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन इन योर एक्चुअल पेपर ऑफ दैट 45 मिनट्स. 3 घंटे में से 45 का टेन्योर है बायोलॉजी के लिए विथ 90 क्वेश्चंस. तो आज से पढ़ने का स्किल और डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए कि आखिरी उस मौके पे आपको वो इफेक्टिवली आप प्रोड्यूस कर सके, और उसके लिए पूरा आप जिम्मेदार होंगे.
ये तो मैं बहुत टेक्निकल चीजों को पढ़ा दे रहा हूँ, टू द पॉइंट, कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे, बट यू शुड बी ऑलवेज एबल टू कोलैबोरेट द एक्सप्लेनेशन। तो हम बोल तो रहे न्यूरोसेंसरी या स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया, हालांकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में ऐसे किसी एपिथेलिया के बारे में मेंशन नहीं है। तो क्या विद एम आई गोइंग बियॉन्ड एनसीईआरटी? यस, आई एम गोइंग विद एन रेफरेंस। आने वाले दिनों में जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, वहां पर एक पैराग्राफ में एक लाइन लिखा है, यही तो वो एक्सप्लेनेशन है। बस उस दिन मुझे हल्का सा टच देना है, क्योंकि नाक सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होके एयर का कंडक्टिंग पाथवे नहीं है, वो ऑल्फैक्शन भी करता है, कंडीशनिंग भी करता है, प्रोटेक्शन भी देता है। वेस्टिबुलर रीजन, कंडीशनिंग रीजन, हेयर ऑयल, सब कुछ इनसेट मेंशन्ड है, क्योंकि इनकमिंग एयर को मॉइस्ट बनाना, कूल बनाना, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और उसी में से एज वेल एज स्मेलिंग सेंसेशन, बस स्मेलिंग सेंसेशन उसमें कहां से आ गया? बाकी सब तो ठीक है अपनी जगह। दैट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ हिस्टोलॉजिकल लेयर, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। तो नोज, शिनेडेरियन मेम्ब्रेन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, स्मेल। वैसे ही टंग में यही न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम टेस्ट बर्ड्स की तरह डिस्क्रीट फैले हुए हैं पूरे टंग सरफेस पे, इनसाइड लिंगुअल पैपिले। डाइसिस्टम पढ़ते हुए देख लेंगे टंग एज अ रिसेप्टर। और बट टंग एज अ रिसेप्टर कैसे? दैट फिनोमिना इज कॉल्ड गस्टैटो रिसेप्टर, और दैट इज टेस्ट। थोड़ा सा आगे कनेक्टिविटी में बढ़ाया जाए कि ब्रेन में स्मेल का सेंटर है टेम्पोरल लोब। कौन सा लोब? क्योंकि किसी ना किसी दिन कोर्स कंप्लीट होगा, आप कहीं भी किस कोर्स के किसी भी एक पार्ट को लेकर रिवीजन के लिए बैठे, तो मैं आपको कह रहा हूं ना, अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है? यू शुड बी एबल टू रिकॉल ऑल द कंसेप्ट, कि अल्टीमेटली वो परसेप्शन जाके नर्वस सिस्टम के किस सेंटर ऑफ कंट्रोल के पास जाता है। नाक और कान और ये सब तो एक हिस्सा है, बाहरी दुनिया, एक्सटर्नल जो चेंजेस स्टिमुलस के फॉर्म में रिसीव करने के लिए, लेकिन कान से रिसीव करके कान से तुम थोड़ी रिस्पॉन्ड कर दोगे। दैट डिसीजन मेकिंग इज समवेयर इनसाइड द बॉडी एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर इफेक्ट, ये रिसेप्टर ऑर्गन है, ये इफेक्टर ऑर्गन नहीं है। इट्स नॉट द इफेक्टर ऑर्गन, परफॉर्मर नहीं है, ये सेंसरी डिवीजन का हिस्सा है। सेंसरी सिस्टम्स क्या है? सेंसरी डिवीजन, वेयर द स्टिमुलस फ्रॉम अराउंड द एनवायरमेंट, फ्रॉम द बॉडी टू सीएनएस। मोटर डिवीजन हमारे बॉडी के दूसरे अपेंडेजेस हैं। कुछ बुरा सुन के, अलार्मिंग सुनाई दिया तो मैं जो भाग रहा हूं, दैट्स एन इफेक्ट, रिस्पॉन्ड ऑफ द बॉडी ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स। और बॉडी में इफेक्टर पार्ट सिर्फ दो ही होते हैं, ग्लैंड्स एंड मसल्स। ग्लैंड्स एंड, क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड बाय टू वेज, आइदर बाय मूवमेंट और बाय सिक्रीशन, आइदर बाय मूवमेंट और, ये है कंसेप्ट। ऐसे पढ़ना, इसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब फिर अप्लाई करना, दैट इज अ स्किल। यानी अब आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, आप कोई बेसिक सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग ले रहे हैं, व्हाटएवर, सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन व्हाट इज द मोटिव, मोटो क्या है, वो पहले तय होना चाहिए। तो नोज, टंग, ऐसे ही आईज। आईज में वही सेंसरी लेयर, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, एक सेंसरी लेयर ऑफ रेटिना। रेटिना में जो 4 लेयर्स होते हैं, उसमें से एक होता है सेंसरी, एक होगा रेटिनल, उसके बाद ही होते हैं सेंसरी लेयर्स। और खुद सेंसरी लेयर 2 तरह के सेल्स के बने, कोन एंड रॉड। कोन एंड, बेसिकली वो कोन और रॉड शुरू में क्या थे? कॉलम शेप्ड। कैसे थे? बाद में वो उन्होंने वो शेप और स्पेशलाइजेशन गेन कर लिया, लेकिन था तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। और जब उसमें मॉडिफिकेशन, तो आगे बताएंगे। फिलहाल आईज सेंसरी लेयर्स ऑफ रेटिना, और उनकी मौजूदगी से विजियो रिसेप्टर का काम वो करता है, और फाइनली विजन। और बॉडी में, अच्छा, टेस्ट के लिए पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। वैसे विजन के लिए ऑसिपिटल, कौन सा लोब? ब्रेन का जो ऑसिपिटल लोब है, वहां पर विजन का सेंटर मौजूद है। ईयर, ईयर्स, ईयर्स में 2 तरह के लेयर्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ईयर इज अ डुअल रिसेप्टर। ईयर इज अ बैलेंसिंग और हियरिंग। बॉडी बैलेंस, बैलेंसिंग सेंसेशन, संतुलन के लिए, और सुनाई देने के लिए। बैलेंसिंग के लिए जो लेयर्स के नाम हैं,
अभी मैं एक जनरल नाम लिखवा दे रहा हूं, फिर स्पेसिफिक आगे चल के देख लेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेयर फॉर बैलेंसिंग, क्योंकि बैलेंसिंग खुद दो तरह का होता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। वाइल द बॉडी इज इन मोशन मूविंग और इट इज इन स्टैग्नेंट, आप बैठे मैं यहाँ खड़ा हूं, हम दोनों ही वर्टिकल स्टेट ऑफ बैलेंस में हैं विथ स्टैग्नेंट बॉडी पोजीशन। या हम बिस्तर पे जाके लेट जाए, बॉडी अगेन स्टैग्नेंट बट हॉरिजॉन्टल, दीज आर स्टैटिक बैलेंस। तो स्टैटिक बैलेंस हो चाहे काइनेटिक, दोनों के लिए अलग अलग लेयर है। मैकुली एंड शॉर्ट में लिखा जाता है क्रिस्टी, मैकुली एंड क्रिस्टी। वह कान में कहाँ कैसे होता है, अगेन जैसे मैंने एक का बनाया है ऐसे उसकी भी डिटेल्स हम पहुंच के बना सकते हैं, लेकिन आज वो मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इस टॉपिक के थ्रू मेन एम था आपके दिमाग में ये टर्म्स, ये लैंग्वेज, ये खास बातें, वर्बिंग जो वोकैबुलरी है वो दिमाग में बैठाना। कि आज के बाद ऑल दीज व्हाट इज कॉमन, अब क्वेश्चन बनाओ, ये जो पढ़ तो लिया, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दीज, जबकि ये सब अपने अपने क्लासिफाइड डिफरेंशियल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वन थिंग इज कॉमन, ऑल आर फॉर परसीविंग सम और आइदर सेंसेस, एंड फॉर दैट दे आर लाइंड लाइनिंग का काम, कवरिंग का काम कौन करता है, एपिथेलिया। दे आर कॉमनली मेड अप ऑफ वन सिंगल स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया कॉल्ड न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, being known with different names in different organs as a sense organ of the body। कहीं वो शिनेडेरियन मेम्ब्रेन, कहीं टेस्ट बर्ड्स, कहीं सेंसरी लेयर ऑफ रेटिना, रॉड कोन सेल्स लेयर जो होते हैं। बैलेंसिंग के लिए मैकुली, पूरा नाम है क्रिस्टे ऑफ एम्पुलैरिस, क्या कहते हैं इसको, पूरा कहते हैं मैकुले लिथोरिया, पूरा क्या कहते हैं ये तो पता चलेगा जब हम कान का डिटेल डायग्राम देखेंगे। फिलहाल हियरिंग के लिए उसी लेयर को कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो लिख ही दिया बैलेंसिंग हियरिंग ऑल टुगेदर प्रेजेंट। तो बैलेंसिंग हियरिंग के लिए ब्रेन में उस हिस्से को कहते हैं सेरिबेलम, हिंड ब्रेन का कौन सा पोर्शन, मतलब परसीव करके अल्टीमेटली वहां से जाके कंट्रीब्यूट करता है, फिर वहां से डिसाइड होता है एज अ गायरोस्कोप ऑफ ह्यूमन बॉडी, एज cerebellum is called gyroscope of the human body। और हियरिंग का सेंसेशन जो अगेन इट्स द टेम्पोरल, कौन सा लोब, ब्रेन में सेरिब्रम 4 लोब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल, उसमें से ये रहा। तो नोट्स बनाकर तैयार करना, लिखना, मटेरियल मिल जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बात ये होती है कि आप उसका सही यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। जब आप सेल्फ अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे कि आपने कैसे चीजों को पढ़ा, कैसे कनेक्ट किया, और फिर सब्जेक्ट क्या है, फिर 10-15 दिन बाद आप टॉपिक के कोई भी, अब आप नियर टू कंप्लीशन है, अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम रह गया, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, बीच में ग्लैंड लिख के 5 तरह के क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी में सिर्फ 3 मेंशन्ड है, 2 एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा क्योंकि आने वाले दिनों में किसी भी फिजियोलॉजी के चैप्टर में, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सपोज एनसीईआरटी में 12th क्लास में एक दिन आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मैमरी ग्लैंड पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स। अच्छा, मैमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट का होना 2 अलग अलग चीजें हैं, हालांकि हिस्टोलॉजिकली वो एस्टेब्लिश एक साथ होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट का बनना और डेवलप होना ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। ये है छोटी छोटी टेक्निकल बातें। ब्रेस्ट इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ब्रेस्ट का डेवलप होना सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है, एंड दैट टू सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। कैसा ट्रेट है वो, जेनेटिकली क्वेश्चन, मेमोरी क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट का बनना, और ब्रेस्ट डेवलप होकर उसमें जो जगह बनता है वो जगह बनता है टू हिस्टोलॉजिकली होल्ड द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, टू होल्ड द। तो इस डिफरेंशिएशन के साथ जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ उस दिन टॉपिक जब मेमोरी ग्लैंड आएगा, लिखवाते पढ़ाते समय क्लास में सीधा मेमोरी ग्लैंड्स हिस्टोलॉजिकली शो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इट इज मल्टी सेलुलर। सपोज मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं कि ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने के बाद तैयारी कैसे होती है, क्यों इस टॉपिक को पढ़ा जाए और कितने तक पढ़ा जाए। मेमोरी ग्लैंड इज मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि एक सेल से बना है कि एक से ज्यादा सेल। अच्छा, एक से ज्यादा सेल तो शेप एंड साइज होगा, यस इट इज कंपाउंड एल्वियोलर, कंपाउंड एल्वियोलर, ठीक है। फिर उसमें डक्ट है, हाँ है, तो एक्सोक्राइन। मेमोरी ग्लैंड इज विच टाइप ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन। फिर उसका नेचर ऑफ सिक्रीशन कैसा है, मतलब जो भी वो सिक्रीट करता है क्या वो वाटर जैसा वाटरी, या चिपचिपा म्यूस्लिजिनस, या मिक्स्ड।
it is serous type, it is watery secretion यानी serous type। अच्छा, फिर जो भी वो सिक्रीट करता है द प्रोडक्ट कॉल मिल्क, उसको सिक्रीट करने का तरीका, मोड ऑफ सिक्रीशन क्या है? ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। फिलहाल मेमोरी ग्लैंड पे क्या बात लागू होती है? इट इज एपोक्राइन। तो फिर वही बात हो गई, जिस दिन हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे और मैं ऐसा स्टेटमेंट दूंगा उसमें इनकी मीनिंग थोड़ी समझाएंगे, उस दिन तो सीधा ऐसा बोलेंगे, लेकिन क्या इन टर्म्स की मीनिंग है, क्यों ये सारी बातें मेमोरी ग्लैंड पर लागू हो रहा है? That's a science called histology, क्योंकि glands all develop from which typical tissue type? Epithelium। और डेवलप होने के बाद उनमें 5 बातें लागू होती हैं। They undergo 5 consideration on the basis of number of cells, on the basis of structure, on the basis of mode of secretion, on the basis of nature of secretion, and at last they have got a duct or not। जो भी वो रिलीज करते हैं टारगेट सरफेस तक पहुंचाने के लिए, उसमें डक्ट के थ्रू या बिना डक्ट के। बिना डक्ट के होंगे तो एंडोक्राइन, एंड दे आर अ डिफरेंट क्लास ऑफ ग्लैंड्स। वो बॉडी में कहीं भी मौजूद हो, दे विल पोर देयर सिक्रीशन इन ब्लड, दैट्स द प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन। एक अलग ही क्लास ऑफ डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द चैप्टर इन फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम। तो मुझे वही 15-20 मिनट लगेगा इस बात को रखने में और पूरा बनाने में, बट टॉपिक नियर टू एंड है विद सम सेल जंक्शंस। आधे घंटे में हम नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे एंड वी विल मूव टू द अनदर टिश्यू टाइप, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो आज ही घर जाके एक थॉरो रीडिंग एनसीईआरटी बुक जहां से चैप्टर शुरू हुआ है एपिथेलियम। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया हो तो यू कैन जस्ट मेक मी रिकॉल, बिकॉज बीइंग एन ह्यूमन, आई एम नॉट द गॉड ऑफ द सब्जेक्ट, हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो, है ना। बाकी रेस्ट एपिथेलियम टिश्यू क्या है और कैसे पढ़ा जाना चाहिए एज पर योर कोर्स, ये है, दिस इज द लिमिट ऑफ योर प्री मेडिकल टेस्ट जो पीएमटी नेट के फॉर्म में, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में सबको? क्लियर? थैंक यू। जिनको भी बुक्स नहीं मिले हैं दे कैन जस्ट कम डाउन टू द नेक्स्ट फ्लोर, वहां से कलेक्ट कर